नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सोल परफेक्शन, फ्रांसिस मटेरियल, excerpt from Selenia Brown's book Soul Perfection, Channel Material. It is perfectly within everyone's normal behavior to release frustration, to show anger, and to show fear. Instead, far too many people suppress their emotions within their own body, a vehicle that does not work as it should. You have a superconscious memory of a body free of heaviness, free of ills that in itself causes frustration. Do you know that Jesus did not like everyone? He did not like the praises. He could not stand the courts. He could not abide the rulers of Rome. Yet he cared for all people. It is impossible for you to walk around constantly truly loving everyone. When you try to love everyone, you have diminished the word love. You use the word love so much that when it comes to truly loving and caring, you have no way to express it anymore on your plane of existence. It is nearly impossible. Most of you, I can say, like and care for others, but very few of you in physical life know what true love is. If you are constantly backed down with grief or what should have been or what was not, you will stunt your spiritual growth. If you are constantly wondering what people think of you, you stunt your growth. Does this make you an uncaring, unfeeling human being? Maybe according to the world's norm, but not in the bigger scheme of life. Every single one of you is individually alone, making your way on a well defined path back where you come from. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सोल परफेक्शन, फ्रांसिस मटेरियल, excerpt from Selena Brown's book Soul Perfection, Channel Material. It is perfectly within everyone's normal behavior to release frustration, to show anger, and to show fear. Instead, far too many people suppress their emotions within their own body, a vehicle that does not work as it should. You have a superconscious memory of a body free of heaviness, free of ills that in itself causes frustration. Do you know that Jesus did not like everyone? He did not like the phrases. He could not stand the courts. He could not abide the rulers of Rome, yet he cared for all people. It is impossible for you to walk around constantly truly loving everyone. When you try to love everyone, you have diminished the word love. You use the word love so much when it comes to truly loving and caring, you have no way to express it anymore on your plane of existence. It is nearly impossible. Most of you, I can say, like and care for others, but very few of you in physical life know what true love is. If you are constantly backed down with grief or what should have been or what was not, you will stunt your spiritual growth. If you are constantly wondering what people think of you, you stunt your growth. Does this make you uncaring, unfeeling human being? Maybe according to the words known, but known in the bigger scheme of life. Every single one of you individually alone, making your way on a well defined path back where you came from. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा की पूर्णता, फ्रांसीसी सामग्री, सिलिनिया ब्राउन्स की पुस्तक सोल परफेक्शन से अंश, चैनल सामग्री। निराशा को व्यक्त करना, गुस्सा दिखाना और डर दिखाना हर किसी के सामान्य व्यवहार में शामिल है। इसके बजाय बहुत से लोग अपनी भावनाओं को अपने शरीर के भीतर दबा देते हैं, एक ऐसा साधन जो ठीक से काम नहीं करता। आपके पास एक अति चेतन स्मृति है कि शरीर भारीपन से मुक्त है, बीमारियों से मुक्त है। यह अपने आप निराशा का कारण बनता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु हर किसी को पसंद नहीं करता था? वह फरीसी लोगों को पसंद नहीं करता था। अदालतों में खड़े रहें,
वह रोम के शासकों का पालन नहीं कर सकता था, फिर भी उसने सभी से प्यार करने की कोशिश करते हैं। तो अपने प्यार शब्द का इतना अधिक उपयोग करते हैं कि जब सच्चे और परवाह की बात आती है तो आपके पास इसे व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं है। आपके अस्तित्व के स्तर पर यह लगभग असंभव है। आप में से अधिकांश, मैं यह कह सकता हूँ, दूसरों को पसंद और परवाह करते हैं, लेकिन भौतिक जीवन में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सच्चा प्यार क्या है। यदि आप लगातार दुख में उलझे रहेंगे या इस बात को लेकर परेशान रहेंगे क्या होना चाहिए या क्या नहीं हुआ, तो आपका आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और आप लगातार यह सोचते रहते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अपने विकास को रोक देते हैं। क्या यह आपको एक बेपरवाह भावहीन इंसान बनाता है? हो सकता है दुनिया के मानदंडों के अनुसार, लेकिन जीवन की बड़ी योजना में नहीं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति रूप से अकेला है तथा एक निश्चित मार्ग पर चलकर उसी स्थान की ओर जा रहा है जहां से आप आए थे। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। आत्मा की पूर्णता, फ्रांसिस सामग्री, सिल्विया ब्राउन्स की पुस्तक सोल परफेक्शन से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री, निराशा को व्यक्त करना, गुस्सा दिखाना, डर दिखाना, हर किसी के सामान्य व्यवहार में यह शामिल है। इसके बजाय बहुत से लोग अपनी भावनाओं को अपने शरीर के भीतर दबा देते हैं, एक ऐसा साधन जो ठीक से काम नहीं करता। आपके पास एक अति चेतन स्मृति है जो शरीर के भारीपन से मुक्त है, बीमारियों से मुक्त है। वह अपने निराशा के कारण बनता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु हर किसी को पसंद नहीं करता था? वह फरीसी लोगों को पसंद नहीं करता था और अदालतों में खड़े रहे। वह रोम के शासकों का पालन नहीं कर सकता था, फिर भी उसने सभी से लोगों को प्यार करने की कोशिश करते थे। और अपने प्यार शब्द का इतना अधियोग करते हैं कि सच्चे प्यार और परवाह की बात आती है तो आपको इसे व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं है। आपके अस्तित्व के स्तर पर यह लगभग असंभव है। आप में से अधिकांश, मैं ये कह सकता हूँ, दूसरों को पसंद और परवाह करने ते हैं, लेकिन भौतिक जीवन में आप में इसे बहुत लोग कम जानते हैं कि सच्चा प्यार क्या है। यदि आप लगातार दुख में उलझे रहेंगे तो इस बात को लेकर परेशान रहेंगे कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं हुआ, तो आपका आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगर आप लगातार यह सोचते रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप एक बेप्रभावहीन इंसान जो बनता है, हो सकता है दुनिया के मानदंडों के अनुसार, लेकिन जीवन की बड़ी योजना में नहीं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अकेला है तथा एक निश्चित मार्ग पर चलकर उसी स्थान की ओर जा रहा है जहां से आप आए थे। दोस्तों, इस अध्याय के माध्यम से हमने पहले भी पिछले अध्याय में इन चीजों को हमने सुना है और पत्री सर ने हमें इस पुस्तक के माध्यम से फिर बताया है। तो दोस्तों, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, संजन संगति नहीं करेंगे, तब तक हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। पत्री सर के द्वारा बताए गए आनापानासति ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, इन चीजों को करने से इसके द्वारा हम इन चीजों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। धन्यवाद। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।